کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 2048 سے۔ یہ وہ وقت تھا جہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا اور جو ریسورسز بچی تھی ان کو حاصل کرنے کے لیے ملک آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسی دوران ہمیں رک کی فیملی دکھائی دیتی ہے جن کو عالیشان مینشن میں لایا گیا تھا۔ یہاں پر آ کر پوری فیملی بہت خوش تھی۔ اس فیملی میں اس کی بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ تبھی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں 13 اور فیملیز ہیں جن کو لایا گیا تھا اور ان پر ریسرچ ہوگی، ایکسپیریمنٹ، جس کے لیے یہاں پر سائنٹسٹ کی پوری ٹیم موجود تھی۔ اگلی صبح اس پروجیکٹ کے پروفیسر ہیڈ دکھائی دیتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں زمین پر سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اور تب انسان زمین پر نہیں رہ سکیں گے۔ اور اس وقت ہمارے پاس ایک راستہ ہے اور وہ ہے ٹائٹن، جو کہ زمین کے بعد رہنے والا ایک دوسرا ذریعہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا چاند ہے۔ مگر اس وقت انسانوں کا وہاں پر رہنا ممکن نہیں۔ وہاں پر میتھین گیس کی بارش ہوتی ہے اور ہوا میں نائٹروجن گیس موجود ہے اور وہاں پر سردی بھی کافی ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان وہاں پر رہے تو ہمیں وہاں پر رہنے کے لیے انسانوں کے جسم میں کچھ بدلاؤ کرنے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے پاس یہاں پر فیملیز ہیں جن کو ہم نے 5000 لوگوں میں سے چنا ہے۔ اور یہاں پر رک بھی تھا جو کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا اور جس کی فیملی کو مینشن میں لایا گیا تھا۔ اور رک نے کہتا ہے کہ ہم سب یہاں پر اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے انجیکشن لگاتے ہیں اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ہفتے میں اسے بہت سارے انجیکشن دیے جائیں گے جس سے اس کے جسم میں بدلاؤ ہوں گے اور اس کا جسم آکسیجن سے زیادہ نائٹروجن بھی حاصل کرے گا۔ جب رک کے گھر میں پارٹی تھی تو اس کی بیوی جس کا نام ایبی تھا اس نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ رک جب اپنی بیوی کو اوپر لے جا رہا تھا تو وہ دیکھتی ہے کہ رک کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کے بعد جو بھی فیملیز تھیں ان کو ایک ایک کر کے ایکسپیریمنٹ کے لیے بلایا جاتا ہے اور انہیں پانی کے پول کے پاس لایا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کتنی دیر تک پانی میں بنا سانس لے کر رہ سکتا ہے۔ تب ایک ایک کر کے جلدی باہر آ گئے تھے، مگر رک اور ایک اور لڑکی 40 منٹ تک پانی کے اندر بیٹھی رہتے ہیں۔ 40 منٹ کے بعد لڑکی کا دم بھی گھٹنے لگا تھا، وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے مگر رک ابھی تک اندر تھا اور آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی کم ہو رہی تھیں۔ وہ سب باہر رہ کر اس کے ہارٹ ریٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کچھ ہوتا تو رک خود ہی باہر آ جاتا ہے۔ سب اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے زیادہ پانی میں وقت گزارا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رک کو ایک سرجری کے لیے لایا گیا تھا۔ جس دن اس کی سرجری کر دی جاتی ہے وہ رات کو اپنے بیڈ پر نہیں تھا اور جب اس کی بیوی دیکھتی ہے تو وہ اسے کچن میں پاتی ہے۔ وہ کچن میں اپنے جسم پر برف رکھ رہا تھا کیونکہ رک کو بہت گرمی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی بیوی ایبی اسے اور برف لا کر دیتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے ذرا بھی ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا جن لوگوں کا ٹائٹن پر بیچنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو رک پہ ویسا ہی اثر ہو رہا تھا کیونکہ ٹائٹن پر بہت ٹھنڈ تھی اور وہاں پر ایسے جسم کی ضرورت تھی جس کو ٹھنڈ کا بالکل بھی احساس نہ ہو۔ مگر ان کو سب سے بڑا سامنا میتھین اور نائٹروجن گیس کا کرنا تھا۔ ان سب کو میتھین گیس کے ساتھ پانی میں تیرنے کا کہا جاتا تھا۔ خاص ہی ان کو خاص قسم کے ماسک پہنائے جاتے ہیں جس سے نائٹروجن بڑھتا ہے اور یہ ماسک پہن کے بہت تیزی سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو ٹائٹن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح بہت سارے دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن رک باتھ روم میں تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے ہیئر فال ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ تیزی سے اتر رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور بھی لڑکا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی سیم ہو رہا تھا۔ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان ایکسپیریمنٹ اور دوائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ان کو ٹائٹن پر بھیجنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ تبھی وہاں ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اور اس لڑکی کو مرتے ہوئے سب پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں۔ سب ڈر گئے تھے کیونکہ ویسی دوائیاں انہیں بھی دی جا رہی تھی اور اب ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ رات کو سب جب رک کے گھر پر جمع تھے، یہ لوگ ان سب کے بارے میں بات کر رہے تھے، تبھی ان کا ایک دوست بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور اپنی بیوی پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ دراصل جب سے اس پر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے تھے
तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा था। ये देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर रिक के घर आती है। वो रिक को बताती है कि जो लड़की मर गई थी वो पहले से ही बीमार थी। उसको दरअसल पहले ही एक बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हुई है, ना कि कोई एक्सपेरिमेंट से। पर रिक समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी रात रिक को उल्टी होती है, इसमें खून आ रहा था। उसकी बीवी उसका ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि एबी भी एक डॉक्टर थी। अगले दिन रिक को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर था। उसकी स्किन भी उतरने लगी थी। वो इस बात से काफी डर चुका था। उधर एबी उसके खून का सैंपल लेकर लैब में जाती है। जब वो इसको टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि रिक के जिस्म में ऐसे बहुत सारे केमिकल शामिल किए गए हैं जिनके बारे में पहले नहीं बताया गया था। एबी इन सब चीजों के बारे में प्रोफेसर हेड से बात करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते। अब रिक की आंखों का ऑपरेशन जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। रिक जब वापस घर आता है तो उसकी आंखों से खून बहने लगा था। उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। एबी दोबारा से उस प्रोफेसर हेड से बात करती है, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। एबी जब घर आती है और देखती है कि पहले जो आदमी था जिसे गुस्सा आया था, अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था, इसीलिए मिलिट्री के लोग आए थे उसे लेने। अब एबी को ये महसूस हो रहा था कि उससे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। वो रिक का कार्ड लेकर उसी जगह जाती है जहाँ रिक की फाइल्स को रखा गया था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये जब वहाँ चेक करती है तो उसे पता चलता है जिस लड़की की मौत हुई थी और जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन उसकी मौत तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। उधर एबी प्रोफेसर के हेड को देखती है जिनकी बात नासा के लोगों से हो रही थी। वो इन पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इंसानों पर ऐसे तजर्बे किए थे जो सरासर गलत हैं। अब उनको जल्दी ये बंद करना होगा और उन्हें सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर रिक के घर जाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किए थे कि वो लोगों को टाइटन पर बेच सकें। वो कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा। सब लोगों के डीएनए अलग हैं और मैं नहीं जानता कि इन दवाओं का असर लोगों पर कैसा होगा क्योंकि लोग अलग अलग हैं। मगर हाँ, रिक एक ऐसा इंसान है जिस पर इन सब एक्सपेरिमेंट का असर नहीं हो रहा और तुम्हारा जिस्म इन एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त कर सकता है और तुम्हारे अंदर अलग तरीके से तब्दीलियां हो रही हैं। वो कहते हैं कि अगर सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनका जिस्म टाइटन पे रहने वाले जिस्मों में से एक हो जाएगा और इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा। मगर हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। ये सब सुनकर एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर रिक बहुत आगे आ चुका था। उसकी आंखें की एक और सर्जरी हो चुकी थी जिससे अब वो अंधेरे में भी देख सकता था। वो पानी में भी बैठकर चीजों को महसूस कर सकता था। उसके बाद जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो मर चुके थे। अब सिर्फ रिक और उसकी दोस्त बचते हैं। लैब में जब उसकी बीवी एबी उसे देखने आती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और ना ही उसके कान थे। जब एबी और अपने बेटे को देखता है तो उन्हें पहचान लेता है, लेकिन उनसे बात नहीं करता क्योंकि उनकी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो लो फ्रीक्वेंसी यानी आहिस्ता से बात कर सकता था, जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकता। उसके बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। उसके बाद रिक की दोस्त रात को उससे मिलने आती है। उसके हाथ में खून लगा था। उसने भी गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को मार दिया था। जब मिलिट्री के लोगों को ये बात पता चलती है तो रिक और उसकी बीवी को लेने आते हैं क्योंकि ये अब सबके लिए खतरा थे। रिक की दोस्त को मिलिट्री के लोगों ने मार दिया था, मगर रिक अपनी ताकत से सबको मार देता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। रिक के पीछे एबी जाती है, उसकी वाइफ, और रिक अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जब वो उसके हाथ को पकड़ता है तो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है, जो ये उसकी नई ताकत थी। जी हाँ, रिक अब दिमागों को भी पढ़ सकता था। तभी मिलिट्री का एक ऑफिसर आता है।
उसने एबी के कहने पर खुद को मिलिट्री के हवाले करने का सोचा था। दोबारा से रिक को लैब में लाया गया था। वहाँ पर प्रोफेसर एबी को कहते हैं कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना है, जिसको लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा। और यही रिक के लिए अच्छा है, क्योंकि अब हम रिक को टाइटन पर भेजने वाले हैं। जब एबी रिक के पास जाती है तो उसे इंजेक्शन लगाती है। हालांकि रिक उसे मना कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को भूलना नहीं चाहता था। एबी ऐसा करते ही अपनी दोस्त को और बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रिक सभी सोल्जर पर हमला कर देता है और उन्हें मार के ही वापस से अपने घर आ गया था। दरअसल एबी ने उसके जिस्म में इंजेक्शन को नहीं लगाया था ताकि उसे टाइटन पर ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है तो वो अपनी बीवी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर तभी मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और उनके साथ वो प्रोफेसर भी था। वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा। वो रिक को टाइटन भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब ये कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही जमीन पर रह सकता है। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे टाइटन पर जाना होगा। और अब एबी को भी ये बात समझ आ चुकी थी और वो रिक को कहती है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है, तुम्हें वापस जाना होगा। रिक को टाइटन पर भेज दिया गया था। इस हादसे के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि रिक की लैब को रिक की बीवी और उसकी दोस्त संभाल रही हैं। वो नई नई एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात रिक का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी मॉम को कहता है कि देखें आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। फिर हम तभी दूर टाइटन को देखते हैं, जो कि टाइटन पर अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो झील में उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। उसको ये सब अच्छा लग रहा था और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।